following reaction Ag plus 2 aqueous react with halide Aq aqueous and Agx plus aqueous. The stability constant for Agx plus aqueous for X equal to fluorine, chlorine and bromide follow the orders. So ये CSI जून 2019 का है. So इसका explanation है. एक्सप्लेनेशन 141 में है. यहाँ पे क्या है? एक्सप्रेशन ए है. सो ए जी प्लस टू एक्वेसियस रिएक्ट with एक्स माइनस to give AgX plus aqueous. The stability constant for AgX aqueous for X is equal to fluorine, chlorine, bromide. Follow the order: fluorine smaller than chlorine, chlorine is smaller than bromide. So bromide is greater than chlorine, chlorine greater than fluoride. Because Ag plus 2 is soft acid and Br minus is soft base. So bromide minus iron soft base है और Ag plus 2 soft acid है. इसीलिए ब्रोमीन जो है ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट होगा Ag plus 2 में कंपेयर टू क्लोरीन और ब्रोमीन से. So answer will be A. Fluorine smaller than chlorine and chlorine smaller than bromide. Okay, so answer is A. Next is self exchange electron transfer is fastest in. ये भी CSI जून 2019 का है. तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेल्फ एक्सचेंज फास्टेस्ट है? A. RuNH36 plus 2 plus 3. B. CONH36 plus 2 plus 3. C. CrOH6 plus 2 plus 3. D. C. FeOH26 plus 2 plus 3. So 140 का आंसर So 140 का आंसर इज ए. तो एक्सप्लेनेशन क्या है? Electron transfer reaction by self exchange electron transfer is the fast when HOMO is pi star and LUMO is also pi star. That is, electron transfer is from pi star of reductant to the pi star of oxygen. So electron transfer reaction self exchange electron transfer की वजह से होता है, जो फास्ट रहता है जब होमो जो है वो पाई स्टार में रहता है और लूमो जो है वो भी पाई स्टार में रहता है. That is, electron transfer is from pi star of reductant to the pi star of oxidant. इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है रिडक्टेंट का पाई स्टार से लेकर ऑक्सीडेंट का पाई स्टार तक. RuNH36 plus 2 pi star 6 sigma star 0 react with RuNH36 plus 3 pi star 5 sigma star 0. RuNH36 plus 3 react with RuNH36 plus 2. Reaction is fast. So HOMO is pi star 6, LUMO is pi star 5. Next is CONH36 plus 2 react with. So CONH36 plus 2 में pi star 5 sigma star 2 है. HOMO is equal to pi star 5. फिर CONH36 plus 3 इसमें pi star 6 sigma star 0 है. So LUMO will be equal to सिग्मा स्टार 0. सो यहाँ पे क्या होगा? CONH36 plus 3 CONH36 plus 2 रिडक्शन जो है स्लो है. देन नेक्स्ट इज क्रोमियम H2O6 plus 2 रिएक्ट विद Cr. तो क्रोमियम H2O6 plus 2 में क्या है? पाई स्टार 3 है, सिग्मा स्टार 1 है. होमो जो है सिग्मा स्टार 1 है. क्रोमियम H2O6 plus 3 यहाँ पे पाई स्टार 3 है, सिग्मा स्टार 0. लूमो इज पाई सिग्मा स्टार 0. सो क्या रिएक्शन मिलेगा? CrH2O6 plus 3 CrH2O6 plus 2 reduction is slow. This FeH2O6 plus 2 having pi star 4 sigma star 2 homo is pi star 4
react with FeH2O6 plus 3 pi star 3 sigma star 0 Loomis pi star 3. So what it gives, FeH2O6 plus 3, FeH2O6 plus 2 reduction is fast. Both reaction A, D are fast, but reaction A is much faster than D. So A और D fast reaction है, लेकिन A ज़्यादा fast है compared to D से, because there is a small change in ML bond length. A जो ज़्यादा फास्ट क्यों है D से, क्योंकि यहाँ पे कुछ छोटा सा चेंजेस हुआ है ML मेटल लिगैंड बॉन्ड लेंथ के बीच में रिएक्शन A में. तो रिएक्शन A में एमोल मेटल लिगैंड बॉन्ड लेंथ में कुछ चेंजेस हुआ छोटा सा. डेट इज़ लेस एक्टिवेशन एनर्जी से रिक्वायर, मतलब उसको कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है. ठीक है, कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब ये जल्दी से रिएक्शन पूरा हो सकता है. तो आंसर विल बी ए. तो ए का आंसर क्या है? इज RuNH3 6 + 2 + 3. इसको कम एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसलिए रिएक्शन फास्ट हो जाएगा. 129. कंसिडर 2 सेट्स ऑफ मॉलिक्यूल. सेट ए AlF6-3, PF6-SF6 and SiF6-2. Set B is BH2O6 + 2, CaH2O6 + 2, MgH2O6 + 2, SrH2O6 + 2. The slowest ligand exchange rate in set A and set B are respectively CSR December 2018, AlF6 and strontium H2O6 + 2, SF6 and MgH2O6 + 2, SiF6 CaH2O6 + 2, PF6- and CH2O6 + 2. सो इसमें दो सेट मॉलिक्यूल को कंसिडर करने का. सेट ए में एल्यूमिनियम हेक्साफ्लोराइड -3 है, फॉस्फो हेक्साफ्लोराइड माइनस है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड -2 है, बेरियम हेक्साअमीन बेरियम +2 है, एक्वो कैल्शियम +2 है, मैग्नीशियम हेक्सा एक्वो मैग्नीशियम +2 है, फिर हेक्सा एक्वो स्ट्रॉन्शियम +2 है. स्लोएस्ट लिगैंड एक्सचेंज रेट इन सेट ए एंड सेट बी रिस्पेक्टिवली. तो सबसे स्लोएस्ट लिगैंड एक्सचेंज रेट होगा सेट ए और सेट बी में. सो कौन सा होगा? सो इसका आंसर जो है हमें मिलेगा हाँ, इसका आंसर जो है वो हाँ यहाँ पे मिलेगा. सो आंसर इज 139B. As the oxidation state increase, the size of central decrease, ligand exchange rate decrease. So oxidation state जैसे जैसे बढ़ेगा, सेंट्रल का साइज जो है छोटा हो जाएगा, तो लिगैंड एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा. ठीक है, लिगैंड एक्सचेंज रेट कब कम हो जाएगा? जब सेंट्रल का साइज़ छोटा हो जाएगा. सेंट्रल का साइज़ छोटा हो जाएगा मतलब ज़्यादा एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एलिमेंट से निकालने के लिए, क्योंकि सेंट्रल का साइज़ छोटा हो रहा है. तो सेंट्रल का साइज़ छोटा कब होता है? जब उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है. सो आंसर विल बी बी. सो बी विल बी बी का आंसर क्या है? SF6 and MgH2O6 + 2. सो SF6 and MgH2O6 + 2, क्योंकि जो सेंटर है जैसे कि हेक्सा फ्लोराइड सल्फ़र, यहाँ पे S का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है. नेक्स्ट इज हेक्सा एक्वो मैग्नीशियम +2, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है. तो इनका सेंटर मेटल जैसे कि हेक्सा सल्फर में
सल्फर का साइज छोटा हो जाएगा। हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम +2 में मैग्नीशियम का साइज छोटा हो जाएगा, तो लिगैंड ट्रांसफ़र जो है वो मुश्किल है, तो इसलिए आंसर इज़ बी। So SF6 and MgH2O6+2 will be have slowest ligand exchange rate. Then next is the isomer A and B undergo base hydrolysis by forming a trigonal bipyramidal intermediate. The correct statement is A. A react faster than B and both result is a in a mixture of products. B react faster than A and both result in a mixture of products. C. A react faster than the B and B result in a mixture of products. D. B react faster than A and A result in a mixture of the products. तो ये CSR दिसंबर 2018 का है। इसमें क्या ए और बी आइसोमर जो है हाइड्रोलिसिस में जाता है और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इंटरमीडिएट बनाता है। तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो हमें एक्सप्लेनेशन में जाना पड़ेगा। सो एक्सप्लेनेशन जो ये है, यहाँ पे NOH माइनस है, यहाँ पे ये कोबाल्ट जो है यहाँ पे अलग अलग लिगैंड्स है, ठीक है। यहाँ पे दो 3 ऐसे मॉलिक्यूल है जो नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो OH माइनस लेते तो NH2 में जो H है वो चला जाता है, फिर Cl माइनस ऐड करेंगे तो Cl माइनस निकाल देंगे, सो कोबाल्ट जो है वो 2+ हो जाएगा। फिर वाटर ऐड करेंगे तो कोबाल्ट में क्लोरीन की जगह OH NH को H एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन मिल जाएगा। 98% ज़्यादा मिल रहा है कंपेयर टू यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जब OH माइनस ऐड करते तो यहाँ पे NH फॉर्म हो रहा है, Cl माइनस निकाल रहे तो एक तो H2 ऐड करके यहाँ पे NH2OH बन रहा है 85%, लेकिन बाद में यहाँ पे OH जो है अलग जगह पर है, कोबाल्ट के साथ जुड़ा है, तो NH2OH। सो आंसर विल बी C। सो व्हाट इज C? वन 138 का C जो है A react faster than B and B result in a mixture of product। तो A जो है ज़्यादा फास्टर रिएक्ट होता है कंपेयर टू B, सो B जो है रिजल्ट देता है प्रोडक्ट का मिक्सचर को। नेक्स्ट इज 137। The correct order of intensity of the DD transition in the complex of a 3D transition metal। सो DD ट्रांजिशन जो कॉम्प्लेक्स में है, कौन सा कॉम्प्लेक्स जिसका 3D ट्रांजिशन मेटल आयन है, उसका DD ट्रांजिशन का इंटेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? A is MH2O4Cl2 greater than trans MH2O4Cl2 greater than MH2O6+2। B is MH2O6+2 greater than cis MH2O4Cl2 greater than trans MH2O4Cl2। C trans MH2O4Cl2 greater than cis MH2O4Cl2 greater than MH2O6+2। D is MH2O6+2 greater than cis MH2O4Cl2 greater than trans H2O4Cl2। सो आंसर जो है वो क्या रहेगा? 137। तो 137 का आंसर इज ए। अभी ए आंसर क्यों है?
The correct order of intensity of DD transition in the complex follow order: cis MH2O6Cl2 greater than trans MH2O4Cl2 greater than MH2O6 plus 2. तो 3D कॉम्प्लेक्स मेटल आयन का ट्रांजिशन का इंटेंसिटी जो है वो सिस रहेगा, सिस ज़्यादा ऑर्डर वाला रहेगा कंपेयर टू ट्रांस है, ट्रांस ज़्यादा वाला ऑर्डर रहेगा सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से. नेक्स्ट इज हाँ. So answer is A. Cis H2O4 Cl2 greater than trans MH2O4 Cl2 greater than MH2O6 plus 2. फिर 136 में the correct set of electronic configuration for metal ion in octahedral coordination geometry for strong Jahan-Taylor distortion is. So electronic configuration का जो correct set metal ion के जो octahedral coordination geometry है strong Jahan-Taylor distortion के लिए, तो CSI दिसंबर 2018 का है ये क्वेश्चन. So A is T2G6 EG1, T2G3 EG1, T2G6 EG3. So B is T2G1, T2G3 EG2, T2G6 EG1. C is T2G3, T2G3 EG1, T2G3 EG2. D T3G 32G EG2, T2G6 EG2, T2G6 EG3. So 75. So 136 का एक्सप्लेनेशन जो है हाँ. So 136 का आंसर विल बी A. For strong Jahan-Taylor distortion, EG orbital must be asymmetrically filled. तो strong Jahan-Taylor distortion के लिए EG orbital जो है unsymmetrically filled होना चाहिए. तो T2G6 EG1, T2G3 EG1, T2G6 EG3. Okay, so answer will be A. तो आंसर विल बी A. T2G6 EG1, T2G3 EG1, T2G6 EG3. Next is 135. For magnesium complex of EDTA, the number of N donor and oxygen donor center are respectively. So magnesium complex EDTA 2 माइनस के साथ, तो वहाँ पे नंबर ऑफ डोनर और नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेंटर जो रहेगा कितना रहेगा? A 2 and 4, B 2 and 2, C 2 and 6, D 2 and 8. सो मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स EDTA के साथ उसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन और डोनर सेंटर कितना होगा? सो आंसर विल बी A. सो यहाँ पे ये मैग्नीशियम और EDTA का कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे देखो कितना है नाइट्रोजन 1 2, मतलब 2 नाइट्रोजन बॉन्डेड है. फिर ऑक्सीजन कितना है 1 2 3 4. ओके. और कार्बन कितना है? Okay, 1 2 3 4 और नाइट्रोजन इज 2. ओके. सो 135 का आंसर इज A. So 135 answer is A, which is
नाइट्रोजन डोनर विल बी 2 एंड ऑक्सीजन डोनर विल बी 4। तो जब भी मैग्नीशियम EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा तो नाइट्रोजन डोनर जो है, ठीक है, मैग्नीशियम के साथ जो अटैच होगा वो 2 होगा, तो 2 नाइट्रोजन डोनर मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा और 4 ऑक्सीजन डोनर मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा। नेक्स्ट इज द 134. The intermediate FeSCNH2O5 plus 2 is detected in the reaction of CONCS NH3 5 plus 2 with FeH2O6 plus 2 in aqueous medium to produce hexa aquo cobalt plus 2 and FeH2O6 plus 3 means hexa aquo ferric 3. The mechanism of the reaction is A. Interchange dissociate, B. Interchange associate, C. Inner sphere electron and transfer, D. Outer sphere electron transfer. तो यहाँ पे फेरिक थायोसाइनाइड पेंटाअमीन थायोसाइनाइड आयरन 2 डिटेक्ट होता है किसके रिएक्शन में, कोबाल्ट थायोसाइनाइड पेंटाअमीन के साथ, थायोसाइनाइड पेंटाअमीन कोबाल्ट के साथ, ठीक है, जो रिएक्ट होता है हेक्सा एक्वो आयरन 2 के साथ एक्वेसियस मीडियम में, ताकि हेक्सा एक्वो कोबाल्ट प्लस 2 और हेक्सा एक्वो फेरिक 3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सके। सो ये जो रिएक्शन जो है कौन सा टाइप का मैकेनिज्म है। सो आंसर विल बी 134 इज सी। सो सी में कौन सा है, सी में कौन सा मैकेनिज्म है, या ये एक केमिक इक्वेशन है, इसमें ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। CONCS NH3 5 + 2 FeH2O6 + 2 after release of water NH5CO SC and FeH2O5 + 4 will form electron transfer NH5COSC and FeH2O5 + 4 react with water to give FeSC and H2O5 + 2 intermediate CONH3 5H2O + 2. CONH3 5H2O + 2 react with 5 moles of H3O + we get COH2O5 + 2 5NH4 + FeSC and H2O5 + intermediate react with water to give FeH2O6 + 3 SCN-. So answer will be C. So क्या आंसर है, answer will be C, which is inner sphere electron transfer. सो कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। नेक्स्ट इज कंसीडर द स्पीशीज नाइट्रोजन ऑक्साइड आयोडीन आयोडाइड माइनस कॉपर +2 VO +2 द नंबर पैरामैग्नीशियम स्पीशीज अमोंग दम एंड द EPA इनएक्टिव स्पीशीज रिस्पेक्टिवली आर। सो स्पीशीज जैसे कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आयोडीन आयोडाइड कॉपर +2 VO वेनेडियम ऑक्साइड +2, ये सब स्पीशीज़ को कंसिडर करो। तो ये स्पीशीज़ का कितना पैरामैग्नेटिक स्पीशीज़ होगा, इसमें से कौन सा स्पीशीज़ पैरामैग्नेटिक होगा, कितना स्पीशीज़ पैरामैग्नेटिक होगा, और उसमें से कौन सा EPI इनएक्टिव स्पीशीज़ रहेगा, ठीक है। सो A4 and I2 - B4 I2